شہر نامے میں آپ کو خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی ضلع اغوا برائے تاوان کی انڈسٹری بن کر رہ گیا ہے۔ کچے کے ڈاکو بے لگام ہو گئے ہیں، پولیس ہوئی مکمل ناکام۔ کچے کے ڈاکوؤں نے ایک دن میں 2 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کچے کے ڈاکو عمر شیر گینگ نے 2 افراد کو اغوا کر لیا۔ ڈاکوؤں نے آج دونوں مغویوں کی تشدد کی ویڈیو بھی بنا کر منظر عام پر لے آئے۔ ڈی آئی جی سکھر پیر محمد، ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پولیس نے کچھ عرصہ پہلے میرے گھر پر بھی حملہ کیا تھا، میرے کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، میرے گھر کا تمام سامان اور مویشی بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ اگر وہ واپس نہیں کیا تو میں مغوی افراد کو رہا نہیں کروں گا اور انہیں ایسے ہی تشدد کا نشانہ بناتا رہوں گا۔ کند کوٹ بگٹی قبائل کا 2 مغویوں کی بازیابی کے لیے غوث پور راسند ہائی وے پر مسلسل 5 گھنٹوں سے احتجاج دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ دھرنے کے باعث سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ میرپور خاص کی تحصیل میں ناموس رسالت ایکشن کمیٹی کی اپیل پر مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے اور احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جھنڈا میں ناموس رسالت ایکشن کمیٹی کے اپیل پر جھنڈو شہر میں گزشتہ دنوں عمر کوٹ میں ہونے والے واقعے میں علماء کرام پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات میں پولیس افسران پر درج کی گئی ایف آئی آر کو ختم کرنے کے لیے شہر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جہاں تمام مذہبی جماعتوں، شہری اتحاد کی مختلف تنظیموں کی جانب سے نیشنل بینک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی، جس میں علماء کرام نے خطاب بھی کیا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی۔ پاک پتن میں ڈکیتی کے دوران 16 سالہ لڑکی کے گینگ ریپ کے مقدمے کی تفتیش نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ پولیس نے جیو فینسنگ کی مدد سے موقع پر موجود 4 افراد سمیت 14 افراد کو شامل تفتیش کر لیا۔ متاثرہ لڑکی نے عدالت میں بھاول نگر کے رہائشی 4 افراد کو نامزد کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر پاک پتن کے گاؤں ملک بھاول کے قریب 8 روز قبل ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران بھاول نگر سے فوتگی پر اظہار افسوس کرنے آئی فیملی کو لوٹ کر اور دوران ڈاکوؤں نے 16 سالہ لڑکی کو گینگ ریپ کیا، جس کے مقدمے کی تفتیش نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ پولیس نے جیو فینسنگ کے ذریعے وقوع کے وقت وہاں موجود 4 افراد سمیت 14 افراد کو شامل تفتیش کر لیا ہے، جبکہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں متاثرہ لڑکی کی شہزادی نے بھاول نگر کے رہائشی 4 افراد کو نامزد کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس جدید سائنٹیفک طریقے سے مقدمے کی تفتیش کو آگے بڑھانے کی اور حقائق تک پہنچ رہی ہے، جس میں مزید انکشافات اور جلد مقدمے کا ڈراپ سیٹ متوقع ہے۔ جہلم سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس نے چوری میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 80,000 روپے نقدی، 3 عدد لیپ ٹاپ، 1 عدد ٹیبلٹ، 2 LEDs اور 8 موبائل فون، سولر سسٹم سمیت دیگر چیزیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان الیکٹرانکس اشیاء چوری کر کے بڑی مارکیٹس میں فروخت کرتے تھے۔ چور گینگ کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج ہیں۔ ملزمان سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ صادق آباد کے رہائشی طاہر محمود کو ڈاکوؤں نے اغوا برائے تاوان ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا کیا۔ تاوان میں تاخیر پر ڈاکوؤں نے طاہر محمود کو قتل کر کے لاش شکارپور کے کچے میں پھینک دی۔ آپ کو بتائیں کہ
کینال گارڈن صادقاباد کا رہائشی تاجر طاہر محمود 13 ستمبر کو اغوا ہوا۔ اس کے بیٹے محمد حنظلہ طاہر کی مدعیت میں تھانہ سٹی پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ ڈاکوؤں نے طاہر محمود کی رہائی کے لیے ورثہ سے 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگا۔ اس دوران کچے کے ڈاکوؤں اور طاہر محمود کے ورثہ کے درمیان تاوان کے لیے ڈیل ہو رہی تھی۔ 2 دن قبل ڈاکوؤں نے ورثہ کو دھمکی دی کہ اگر فوری طور پر تاوان نہ دیا تو طاہر محمود کو گولی مار کر لاش دریا میں پھینک دیں گے۔ تاوان کی عدم ادائیگی پر رات میں ڈاکوؤں نے طاہر کو قتل کر کے لاش شکارپور سندھ میں پھینک دی۔ ملکوال سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی ملکوال کے تحت نابینا افراد کی دینی تعلیم اور قرآن مجید حفظ کے لیے مدرسہ فیضان اہل بیت قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی پاکستان کی طرف پاکستان بھر میں نابینا افراد کے لیے 6 دینی مدرسہ فیضان اہل بیت ملکوال کے نام سے چک میں بالا میں نہر کے کنارے قائم کر دیا گیا ہے۔ مدرسے کے محتمم محمد شہباز اتاری نے بتایا کہ دعوت اسلامی پاکستان کے تحت نابینا افراد کی دینی تعلیم کے لیے پہلے 5 مدارس ملک بھر میں قائم کیے ہیں، جبکہ 6 مدرسہ ملکوال میں قائم کیا گیا ہے، جس کی نئی اور خوبصورت عمارت میں طلباء کے لیے اچھی رہائش اور کھانے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں نابینا افراد کو تعلیم سمیت تمام سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جہاں اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں گونگے بہرے دلہا کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ دلہن بھی نہ ملی اور پیسے بھی گئے، بارات خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا کے نواحی گاؤں کے رہائشی گونگے بہرے نوجوان سلیم سے 9 سربازوں نے شادی کا جھانسا دے کر 3 لاکھ ہتھیار لیے۔ دلہا سلیم بارات لے کر پہنچا تو دلہن والے تالے لگا کر گھر سے فرار ہو گئے۔ دلہے کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا گونگا بہرا تھا، ساری جمع پونجی لٹ گئی، 3 لاکھ روپے بھی دیے، پھر بھی دلہن کے بغیر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ دلہے کی والدہ کی جانب سے کارروائی کے لیے درخواست مقامی تھانہ میں جمع کرا دی گئی۔ کبیر والا سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج محمد سجاد حسین بلوچ نے قتل کے 2 الگ الگ مقدمات کے فیصلے سنا دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کورٹ کبیر والا میں ایڈیشنل سیشن جج نے جرم ثابت ہونے پر ملزم قومی گجر کو 15 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا۔ ملزم مظفر ولد احمد کو 19 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ملزم مظفر کو سزائے موت 10 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ باقی ملزمان کے عدم ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ پریس کلب بھاول نگر میں دنیا کے سب سے بڑے قلمی مترجم رنگین قرآن پاک کی زیارت کروائی گئی۔ قرآن پاک کی زیارت کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پریس کلب بھاول نگر پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد ورک سے۔ جی ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پریس کلب بھاول نگر میں، جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اس کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ میرے ساتھ پریس کلب بھاول نگر کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ اس قرآن پاک کا کیا مقصد ہے؟ جی یہ خطاط ہے، معروف خطاط ہے فیصل آباد کے امتیاز حیدر، یہ ان کی کاوش ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا یہ تحریر کیا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جو قرآن پاک ہے، اور یہ پریس کلب بھاول نگر کے ذریعے بھاول نگر کی سعادت ہے کہ یہ قرآن پاک یہاں موجود ہے، اور اس کی 2 روز کے لیے زیارت کروائی جا رہی ہے، اور شہری بڑی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں اور اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس میں جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے امت مسلمہ جو ہے نا وہ کامیابی کی منازل طے کر سکتی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے
जनरल सेक्रेटरी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इसकी ज़ियारत का मकसद यही है कि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। जी साहिवाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से साहिवाल टीचिंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी यूनिट के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल वॉक में म्यूनिसिपल मेडिकल प्रिंसिपल की कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर निसार, मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा नाज समेत दीगर वार्ड्स के HODs, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों को दिल के अमराज से बचाना और दिल के मरीजों को इलाज समेत एहतियाती तदाबीर और मोहतात लाइफ स्टाइल से आगाही फराहम करना था, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और भरपूर आगाही फराहम की गई। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नए तैनात होने वाले DSP ट्रैफिक पुलिस अमीर अब्बास का अवामुल नास को अहम पैगाम, अपना लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें और कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज ना दें। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब और एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और DPO खानेवाल और नए तैनात होने वाले DSP ट्रैफिक पुलिस अमीर अब्बास की जानिब से लोगों को आगाही दी जा रही है कि अपना लाइसेंस बनाएं और अपने अच्छे शहरी होने का सबूत दे। तो बात करते हैं DSP ट्रैफिक पुलिस से। बताइएगा, IG पंजाब और एडिशनल IG साहब की तरफ से मैसेज दिया गया कि जितना हो सके लोगों के लाइसेंस बनाएं, क्या कहेंगे? आवाम को शऊर और आगाही देने के लिए एक सिलसिला है कि IG साहब पंजाब और एडिशनल IG साहब ट्रैफिक पंजाब की तरफ से कि तमाम लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और अपनी जो है बेहतर रोड सेफ्टी के लिए ये जो है करें, रोड सेफ्टी को जो है वो मलूज़ खातर रखा जाए। सर, ये कहेगा कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिल और रिक्शे लेके बाजारों में आ जाते हैं, हादसे का सबब बनते हैं, आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ज़ाहिर है वालिदैन के लिए उनके जो औलाद है सबसे कीमती एहसास होता है। उनको चाहिए कि वो ऐसे रिस्क न लिया करें और कभी भी अपनी गाड़ी या अपना बाइक या अपना रिक्शा जो भी जिसके पास दस्तियाब है वसाइल, वो उनको रोड पे ना ले आएं कि इससे इंसानी ज़िंदगी का जो है वो ख़तरा है। इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, जिसको बचाने के लिए वो अपना पार्टिसिपेशन करें। नए तैनात होने वाला DSP अवामुल नास को ये पैगाम है कि अपना लाइसेंस बनवाएं, खिदमत सेंटर पर तशरीफ लाएं। और इनका यही कहना था कि मेरा वालिदैन को ये मैसेज है कि कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल या रिक्शा बिल्कुल ना दें जो हादसे का सबब बनते हैं। और इनका यही कहना था कि अवामुल नास को खास तौर पर ये पैगाम है कि अवाम को चाहिए अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर हेलमेट है तो ज़िंदगी महफूज है। जी, पंजाब भर की तरह जिला डेरा गाजी खान में भी मोटरसाइकिल लाइसेंस 15 मिनट में हासिल करें। इस वक्त नज़ीर खान भट्टी DSP ट्रैफिक पुलिस के हमरा मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान ट्रैफिक DSP के ऑफिस में और मैं आपको बताता चलूँ कि अवाम के लिए ये पैगाम है कि लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो उसके ऊपर जुर्माने ऐद किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ DSP साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, आप ये बताइएगा कि जो लाइसेंस बनवा रहे हैं इसकी क्या सहूलत दी जा रही है? ये जो कैंपेन चली हुई है तकरीबन इसको 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है। हमने तमाम शहर में और तमाम जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें उनको हमने आगाही मुहिम भी चलाई है कि भाई फौरी आएँ जो जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए। मोटरसाइकिल का लाइसेंस हम ठीक 15 मिनट में उस कैंडिडेट को बना के देते हैं और एक ही छत के नीचे कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सहूलत का फ़ायदा उठाएं, लेकिन जो पब्लिक को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था अभी तक वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। हम उनसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आएँ, अपने दोस्तों को ले आएँ, ठीक 15 मिनट बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो सर, ये मेडिकल वगैरह हर चीज़ यहीं पर हो रही है? हर चीज़ एक ही छत के नीचे हो रही है। इनकी सहूलत के लिए तमाम हमने सेटअप एक ही जगह बना दिया है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है DSP साहब का कहना है कि आएँ, अपना लाइसेंस बनाएं और जो बाइक मोटरसाइकिल है इसका लाइसेंस आपको 15 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा और एक ही छत तले तमाम सहूलत दी गई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाइसेंस ना बनवाने वालों के ऊपर जो है कि जुर्माने भी ऐड किए जाएंगे।
जला जिम मेलसी में जमीयतुल उलमा इस्लाम आज पावर शो करेगी। जला जिम में जमीयतुल उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें साबिक़ सेनेटर हाफिज़ हम्दुल्ला भी शिरकत कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा इस्लाम आज जला जिम में एक पावर शो करने जा रही है। जमीयतुल उलमा इस्लाम जला जिम के ज़ेर एहतमाम आज सीरतुन नबी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरकज़ी रहनुमा जमीयतुल उलमा इस्लाम साबिक़ सेनेटर हाफिज़ हम्दुल्ला तशरीफ़ ला रहे हैं। हाफिज़ हम्दुल्ला साहब आज सीरतुन नबी के मौजू पर बयान फरमाएंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जमीयतुल उलमा इस्लाम के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी तहसील मेलसी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके इस जलसा के हवाले से क्या लाए अमल है और क्या इनका प्रोग्राम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, इंशाअल्लाह ये जला जिम की तारीख़ का बेहतरीन और मिसाली प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। और आप हज़रात जानते हैं कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गोल्डन जुबली के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबात हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह जला जिम भी इंशाअल्लाह इस हवाले से एक बहुत बड़ा जो है ना जी इज्तिमा कर रही है। और इंशाअल्लाह इसके हवाले से मैं तमाम कारकुनान को भी पैगाम पहुंचाऊंगा कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब कराने के लिए भरपूर ताउन करें और जौक दर जौक और काफ़िलों की सूरत में दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए इस पंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। जमीयतुल उलमा इस्लाम आज जला जिम में एक पावर शो करने जा रही है। जमीयतुल उलमा इस्लाम जला जिम के ज़ेर एहतमाम आज सीरतुन नबी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरकज़ी रहनुमा पतोकी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि गैर कानूनी तरीके से मुतादिद ख़वातीन के नाम पर सिमें जारी होने का इंकशाफ हुआ है। शहरी ने मामला सामने आने पर FIA को तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी है। आपको बताते चलें कि गैर कानूनी तरीके से ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी होने वाली सिम्स के मामले पर FIA लाहौर के साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ख़वातीन के नाम पर मुख्तलिफ कंपनीज की सिमें जारी हो रही हैं। इन जारी शुदा सिम पर फेक ट्रांजैक्शन करने के हवाले से सूबाई कमीशन भी तश्कील दिया गया है, जबकि इजी पैसा जैसे अकाउंट भी बने हुए हैं, जबकि फैमिलीज को मालूम भी नहीं कि उनके नाम पर कई सालों से सिमें एक्टिव हैं। ख़वातीन के नाम पर इन एक्टिव सिम्स के मुतादिद वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। खारिया से खबर शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ज़ुहैब मुमताज़ ने खारिया के मुख्तलिफ बाज़ारों और तंदूरों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायज़ा लिया और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी जारी की हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ज़ुहैब मुमताज़ ने खारिया के मुख्तलिफ बाज़ारों और तंदूरों का दौरा करते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों की जाँच की। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट्स और तंदूर मालिकान को सख्ती से हिदायत की है कि 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपये से ज़्यादा वसूल ना करें। उन्होंने खबरदार किया है कि कीमतों की खिलाफ वर्जी या वज़न में कमी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद आवाम को मयारी अशिया खुर्दनोश मुनासिब कीमत पर फराहम करना है। वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से आपको आगाह करें कि फैसलाबाद प्रेस क्लब में वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से डॉक्टर हामिद सईद, डॉक्टर इरफान और दीगर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कार्डियोलॉजी डॉक्टर ने मेट्रोवन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हार्ट के लिए हमें परहेज़ की बहुत हद तक ज़रूरत होती है। और ये फैसलाबाद की कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी कि आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और कार्डियोलॉजिस्ट को साथ में इन्वॉल्व किया ताकि इस मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाया जा सके कि हार्ट के लिए हमें एक्शन और एक्शन करना है, परहेज़ करना है बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो नुकसान देती हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, इनको मॉनिटर करना है रेगुलरली और इनके लिए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के मुस्दाक
हमें इनको कंट्रोल रखना है। हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी, हमारा ग़ज़ाई चार्ट हेल्दी, ये सब चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी सेहतमंद हो जाएगी। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से, जहां पुलिस थाना सिटी शकरगढ़ की बड़ी कार्रवाई बैनुल जिलाई मवेशी चोर गैंग के 2 कारिंदे उस्मान और अली जोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान के कब्जे से चोरी की गई 3 भैंसें, 1 गाय और 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। जहानिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कंपनी झानिया में कायम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, जहां बदनज़मी पुलिस का मुबैना लाठी चार्ज हुआ है और मुतादिद ख़वातीन बेहोश हो गई हैं। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कंपनी झानिया में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त तकसीम करने के मौके पर रश की वजह से ख़वातीन धकेल दी गई, जिसके बायस गिर पड़ी। गिरने वाली ख़वातीन दूसरी अपनी हामी ख़वातीन के हमरा हमला कर दिया। पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन को मुंतशिर करने के लिए डंडों का मुबैना इस्तेमाल करके कोशिश की, मगर हालात काबू से बाहर हो गए। चिन्योट शहर में मासूम शहरियों को सऊदी अरब के वर्क वीज़े जारी होने का इंकशाफ। तमाम जारी होने वाले वीज़े जाली निकले। फ्रॉडिये ने शहरियों से लाखों रुपए बटोर लिए। खबर ने आपको कि चिन्योट के मुतादिद शहरियों को सऊदी अरब के जाली वीज़े जारी कर दिए गए। मुल्जिम मुजाहिद ने मासूम शहरियों को झांसा देकर सऊदी अरब के वीज़े दिए जो जाली निकले। मुल्जिम मुजाहिद ने मुतादिद शहरियों को सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के अलग अलग वीज़े जारी किए। जारी होने वाले वीज़ों की टिकट्स खरीदने के लिए मुतासरीन गए तो मालूम हुआ तमाम के तमाम वीज़े ही जाली हैं। मुल्जिम मुजाहिद ने तमाम जारी करने वाले वीज़ों को खुद कंप्यूटर से तैयार कर रखा है। इस हवाले से मुतासरीन का कहना था कि मुल्जिम बाअसर है, जो मुख्तलिफ लोगों से धमकियां आमेज फ़ोन करवा रहा है और उल्टा हम पर झूठी वारदात दायर कर रहा है। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि मुल्जिम के खिलाफ FIA और मुताल्लिका इदारे कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करें। हाफिजाबाद से अहवाल आपको बताएं कि हाफिजाबाद में DPO फैसल गुलजार की मियाँ शहादत भट्टी के डेरे में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने मौके पर ही SHO पुलिस थाना का लीगी मंडी शेख नदीम को मसाइल के हल करने के अहकामात जारी कर दिए। इस मौके पर DPO फैसल गुलजार ने कहा कि पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो लोगों के जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं और अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फतेहपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की एक और बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ शहजाद मुक्सी और डिप्टी डायरेक्टर लिया वकार एहसन की डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट की इंस्पेक्शन। 500 लीटर मैंगो फ्रूट ड्रिंक्स मौके पर तल्फ कर दी गई। आपको बताएं कि डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मुक्सी और डिप्टी डायरेक्टर लिया वकार एहसन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की रिजवी डेयरी फार्म लोहारवाला में डिस्ट्रीब्यूटर की कार्रवाई के अमल में लाई गई। टेस्ट के दौरान फ्रूट ड्रिंक्स में मसनूई मिठास की मिलावट पाई गई। स्टोरेज एरिया में हशरात की मौजूदगी भी पाई गई। गैर मयारी मशरूबात तल्फ करने का मालिकान को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि जालसाजी और धोखाधड़ी का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है।
खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर ममलिकत बराए दाखिला MNA अब्दुल रहमान खान का निजी डिप्टी कमिश्नर और लोधरा अब्दुल रऊफ मीरा, साबिक MPA मलिक शाह मोहम्मद खान जोया और असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड़ पक्का इरम शहजादी के हमरा THQ अस्पताल कैरोड़ पक्का का दौरा किया है। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल रहमान खान ने का कहना था कि ज़ेरे इलाज मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला अपनी हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। स्टाफ के हवाले से MS THQ के साथ मीटिंग भी की जा रही है, जिसमें फंड्स के हवाले से जल्द ही CM पंजाब से मीटिंग की जाएगी। अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन इलाज तशखीस के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया अवाम उन्नास को बेहतरीन और बर वक्त तिबी सहूलियात देने के लिए हम वक्त कोशा है। कसूर में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस बाकर रसूल अनवर की केमिकल से दूध बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि कसूर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम का कसूर के इलाके दोलीवाला के करीब नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान फूड सेफ्टी टीम ने 500 किलो खुश्क दूध को जब्त करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पतोखी से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि दुरूद कमेटी और अंजुमन लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल का सिलसिला जारी है। तंजीम के मरकजी प्रोग्राम का एहतमाम मोहल्ला बकर मंडी में दुरूद कमेटी के सदर उस्मान अहमद कादरी के घर में किया गया, जिसमें नामवर उलमा कराम के साथ साथ अहले इलाका ने भी भरपूर शिरकत की है। आपको बताएं कि पतोकी में दुरूद कमेटी और अंजुमन लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़ेर एहतमाम किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से शहर भर के महफिलों का सिलसिला जारी है। तंजीम के मरकजी प्रोग्राम का एहतमाम मोहल्ला बकर मंडी के दुरूद कमेटी के सदर उस्मान अहमद कादरी के घर पर किया गया, जिसमें तिलावत कलाम पाक हाफिज कारी गुलाम हुसैन ने पेश की। निज़ामत के फ़राइज़ तनवीर अहमद कादरी साहब ने अदा किए। नात ख्वानों में साकिब शरीफ, अकमल सुल्तानी, शेख मोहम्मद अहमद यूसुफ, मुजीबुर रहमान, अतीक अमजद और दीगर हजरात शामिल थे। खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसन मुइज़ी साहब ने किया। महफिल में नामवर उलमा कराम के साथ साथ अहले इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रुख करते हैं राजनपुर ज़िला के अहम सिटी कोट मिठन का, जहां का स्टेडियम वीरान हो चुका और नौजवान नस्ल खेलों की सरगर्मियों से महरूम होने लगे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे AD आमिर से। जी आमिर, बताइएगा। 15 अप्रैल 2005 को कोट मिठन का अकलौता स्टेडियम आफ्ताब स्टेडियम तामीर किया गया, जो 0.8 मिलियन से उस वक्त के जिला नाज़िम सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान द्रिशक ने तजवीज़ कुनिंदा सिटी नाज़िम कमाल फरीद मलिक के कहने पर ये आफ्ताब स्टेडियम तामीर किया गया, और जिसमें खेलों की सरगर्मी को उजागर करने के लिए इस आफ्ताब स्टेडियम की जो ज़ेर निगरानी है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजनपुर कर रहे हैं। तो आज इसकी खस्ता हालत को देखकर जो है तकलीफ महसूस हो रही है। शहर के खेल के मैदान वीरान हो जाएं तो उसके अस्पताल जो है आबाद हो जाते हैं। इस हवाले से इस वीरानी को देखते हुए हम यहाँ के मकामी शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आफ्ताब स्टेडियम ये वीरान हो चुका है,
اس کی جو قیمت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ کھیلوں کی طرف راغب نہیں ہو رہی، تو کیا وجوہات ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ اس آفتاب اسٹیڈیم کو تقریباً بنے 19 سے 20 سال ہو گئے ہیں، یہ بنا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی کسی قسم کی دیکھ بھال نہیں کی گی۔ اب یہاں پہ جو گراسی ہے وہ یہاں پہ بالکل یعنی کہ ختم ہو گئی ہے۔ جو نوجوان یہاں پر کھیلنے آتے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ۔ تو میرا ضلعی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ اس آفتاب اسٹیڈیم کو سنبھالا جائے، اسے رینوویٹ کیا جائے، یہاں پر کوئی چوکیدار تعینات کیے جائیں تاکہ اس کی دیکھ بھال ہو سکے۔ کھیل کے میدان کی ویرانی کو دیکھ کر جو ہے یہاں کے لوگوں کا یہی مطالبہ ہے شہر ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے اور حکومت وقت سے کہ اس کو آج سے نو تعمیر کیا جائے۔ جی چشتیہ سے افسوسناک خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ انسانی تذلیل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ THQ اسپتال چشتیہ میں انسانیت سوز واقعہ، بزرگ خاتون کو رسیوں سے باندھ کر رکشہ پر THQ اسپتال لایا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی بزرگ خاتون کو ورثہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بزرگ خاتون کو اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال منتقل کیا۔ آپ کو بتائیں کہ چشتیہ انسانی تذلیل کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ THQ اسپتال چشتیہ میں انسانیت سوز واقعہ، بزرگ خاتون کو رسیوں سے باندھ کر رکشہ پر لایا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بزرگ خاتون کے ورثہ موقع پر آئے، اپنی مدد آپ کے تحت بزرگ خاتون کو اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال منتقل کیا۔ بزرگ خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گجرات میں حاجی عدنان اقبال مکی نے آل پاکستان مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے کی تقریب میں سابق MPA حاجی ناصر محمود اور دیگر بھی موجود تھے۔ عشائیہ کی تقریبات میں سیاسی و سماجی مذہبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ میلسی سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ میلسی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے میونسپل کمیٹی کی جانب سے لگائی جانے والی جنرل بس اسٹینڈ فیس نافذ کرنے پر ٹرانسپورٹر نے میلسی ملتان روڈ مکمل طور پر بند کر کے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ سے۔ جی، میونسپل کمیٹی کی طرف سے جنرل بس سٹینڈ فیس پرچی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس پر ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہیں۔ ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ میلسی میں جنرل بس سٹینڈ پر کسی قسم کی کوئی سہولیات دستیاب نہیں ہے اور ہمارا ڈی کلاس سٹینڈ منظور ہے، اس کے باوجود ہم پر جو ہے پرچی کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک مینیجر ہمون۔ 2000 سے لے کر 2024 تک 31 دسمبر 2024 تک ہمارا جو سٹینڈ ہے یہ رینیول ہے، اس کی جو ہے نا ٹوٹل ریٹرن کاغذات ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے لے کر تحصیل سے لے کر وزیر بلدیات تک آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر فیصل مورد والے دے رہے ہیں وہ بھی ڈی کلاس ہے، اگر وینس ٹرانسپورٹ والے دے رہے ہیں وہ بھی ڈی کلاس ہے، پورے پاکستان میں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ یہ جنرل بس سٹینڈ تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے، جنرل بس سٹینڈ کا کوئی نام ہی نہیں ہے تو وہ بند پڑا ہے کہ جنرل بس سٹینڈ جو ہے وہ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے اور ہم ڈی کلاس والے سہولیات دے رہے ہیں، اور اگر ہم سہولیات دے رہے ہیں تو کسی قسم کا ہم پر پرچی کا کوئی نفاذ نہیں ہونا چاہیے۔ فیصل آباد میں شہریوں کی جان و مال کے محافظ زمینوں پر قبضہ کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد میاں نعیم صفدر کی اس رپورٹ میں۔
फैसलाबाद के इलाका थाना मिलट टाउन 197 बागेवाल का रहायशी पुलिस मुलाजम गफार वल्द अब्दुलसत्तार बना इलाका में कब्जा माफिया का सरगना। 4 मुकदमा दर्ज मगर फिर भी पुलिस में तैनाती। पुलिस की मिली भगत से 4 मुकदमात का चलान अब तक अदालत में पेश न हो सका। पुलिस का नाम खूब रोशन करते हुए इलाका में खौफ व हरास की अलामत। इलाका मकीन परेशान। पुलिस ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਇਨ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ FIR ਆ। ਇਹ 4 FIR ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਬੰਦੇ 15-20 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਮਿਲਟ ਟਾਊਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਚੌਂਕੀ ਮੁਨੀਆਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ थाने। उत्थे जाके असी बैल पवाया वा, बूटा बाजियाब किया। जज साहब ने ਉਹਦੇ खिलाफ SHO ਦੇ आर्डर दिते है परचे दे, लेकिन कोई सानू रिस्पॉन्स नहीं मिलिया। ठीक है, एक माफिया ग्रुप आ, रलिया वा सारा, इन्होंने सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। मुतासरा इलाका मकीन शहरी ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद व दीगर अफसरान बाला से अपील की है कि इसकी इंक्वायरी करवाते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां नईम, मेट्रो 1 न्यूज फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं कि सियालकोट पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। डकैती और राहसनी की वारदातों में मुलव्विस ताहिर उर्फ ताहिरी गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राहसनी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र DSP समड़ियाल सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना समड़ियाल इंस्पेक्टर अरशद अहमद ने पुलिस टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताहिर उर्फ ताहिरी गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।